आज जो ये पार्लियामेंट और ये रैली हो रही है, इसका मकसद पूरे देश में स्टूडेंट्स और यूथ के अधिकारों को सेव करने के लिए है। खासकर हमारे देश में एजुकेशन को लेकर और रोजगार को लेकर जो काम होना चाहिए, उसके लिए ये आज रैली की जा रही है पूरे देश के स्टूडेंट और नौजवानों की तरफ से। हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से हम ये डिमांड करते हैं कि देश के लोगों को फ्री, कंपल्सरी और साइंटिफिक एजुकेशन का अधिकार होना चाहिए। और आज जब हम देश में देखते हैं कि इंडिया में 40 करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, कोई पीएचडी किए हुए बहुत सारे लोग हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, मास्टर किए हुए हैं, लेकिन सरकार उन्हें कोई रोजगार नहीं दे रही। तो हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से ये डिमांड करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनना चाहिए। 18 साल से ऊपर हर एक नौजवान को जो रोजगार चाहता है, सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनकी रोजगार की गारंटी करे। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि भगत सिंह के नाम पर भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हमारे देश में लागू होना चाहिए। इस कानून के तहत हर एक को रोजगार की गारंटी होनी चाहिए और कम से कम जो तनख्वाह है आज के समय में, जो अनस्किल्ड वर्कर होगा उसको 35,000 रुपया, जो सेमी स्किल्ड है उसको 45,000 रुपया, जो स्किल्ड है 50,000 और जो हाईली स्किल्ड है, डिग्रियां डिप्लोमे हैं जिसके पास, उसे 60,000 प्रति महीना तनख्वाह होनी चाहिए। रोजगार और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे हो? आज हम जब देखते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में दाखिल हो चुके हैं, सारा काम मशीनों और रोबोट्स की माध्यम से होता है। तो नया रोजगार जनरेट करने के लिए हम कहते हैं कि आज हमें वर्किंग डे को कम करना होगा। आज 8 घंटे से हमें 6 घंटे दिहाड़ी करनी होगी कानून। इससे 33% नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब 3 शिफ्टों में काम हो रहा है देश में। अगर 6 घंटे की काम दिहाड़ी हो तो 4 शिफ्टों में काम होगा। तो जहां देश में 30 करोड़ लोग काम करते हैं, 6 घंटे काम दिहाड़ी होने के 4 शिफ्टों में काम होगा तो 40 करोड़ काम पर चले जाएंगे। तो आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हमें वर्किंग डे को कम करना चाहिए और हम ये डिमांड करते हैं कि भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास होना चाहिए ताकि हमारे युवाओं को रोजगार दिया जा सके और वो अपना फ्यूचर सेव कर सकें। So I joined the march because like the NEP, the basic structure of NEP itself is anti-student. So in the NEP itself, like I'm an activist, so I have been campaigning against NEP for the last 1.5 years. So I have talked with many students. I'm working on the ground. So even the students themselves are saying that within implementation of NEP, the fee structure, the fees in our college have increased. So which itself is very discriminatory towards marginalized section. So people coming from marginalized section are like unable to continue their studies for a degree, and their dropouts have increased. And another thing is that like they have increased the courses that like I'm a person, like I'm not in the NEP batch, so I've talked with the people who are studying in the NEP batch. So the number of core papers have increased, and there are apart from the core papers, there are extra papers like VAC, STC papers that are so unnecessary for a graduation student to study. So they have increased the course basically, but there is no facilities to accommodate these courses. There are lack of reference book are there, and there are lack of teachers. So in our college for the last 1 year, there have been vacancies for various departments to teach the core papers itself, and the fee have increased, which itself is very discriminatory towards the marginalized section. So people coming from marginalized section are unable to pay the fee, and many people the dropout is increasing because of this. And another thing is that with the earlier university in Delhi University, itself give fund to college. So now with the implementation of NEP, college have to take loan from universities. So to repay this loan back, college is increasing their fees. So which is a burden over students basically. And also we can see that the syllabus of our syllabus have changed a lot. The contents of Ambedkar and progressive contents have been replaced with regressive contents. Like they are with this NEP, they are trying to inject their hate Hindutva propaganda into our academic spaces. जैसा कि हम लोग जानते हैं साथियों कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020
किस तरह से लोगों को डिस्क्रिमिनेट करता है, किस तरह से लोगों को पढ़ने से रोकता है। इसमें तमाम चीज़ें जो है, जैसे विश्वविद्यालय में एमफिल को ख़त्म करना, ये इसका पार्ट है। जैसे कि और भी तमाम चीज़ें जिससे एनईपी में सम्मिलित है, जो गरीब और तबके और पिछड़े आदिवासियों को हक मारने का काम करेगा। जैसे कि ये कहता है कि विश्वविद्यालय अपने फंड से संचालित हो, विश्वविद्यालय व्यवस्था करे को अपने फंड से संचालित हो, तो फिर सरकार किस लिए होती है। भारत एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है और साथ में एक सोशलिस्ट कंट्री है, तो एक समाजवादी देश होने के नाते सरकार का और इस देश के टैक्स पेयर का ये फर्ज है कि सरकार से इन तमाम सुविधाओं की मांग करे। और जब हमारे एमपी एमएलए लाखों की फंड लेते हैं, उनकी सैलरीज होती हैं, तो देश में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं, रोजगार क्यों नहीं। द मूक नायक की खबरें अब ऐप पर भी। इसे आप गूगल प्ले स्टोर या दिए गए क्यूआर कोड से स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। वंचित शोषितों की खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट और वीडियो अब एक ही प्लेटफॉर्म पर। डाउनलोड करें और रेटिंग देना ना भूलें।